Asif bhai, thank you so much for taking the time out. Before we go into your role at PTCL, आपने काफ़ी डिफरेंट जगहों पे भी काम किया. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली IBM के साथ आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा. थोड़ा सा मुझे अगर आप पीछे बिल्कुल लेके जाएं, हाउ डिड ऑल स्टार्टेड? पढ़ाई आपने कहाँ से की? वेयर आर यू फ्रॉम? UK में यू वर मेंशनिंग आपने कुछ टाइम स्पेंड किया. So let's start from there, I think. Tala, thank you very much for inviting me over. It's an honor for me to be here with you. और मैं तुम्हें काफ़ी फॉलो करता हूँ, and mashallah, you are doing a wonderful job for the country and for the society. So here I was brought up in a place called Wah, which is about an hour. Wakent, yes. So I studied from Sir Syed School in Wah. And then I was very fortunate to land at Ghulam Isa Khan Institute for my engineering back in 1996. I graduated in 2000. और उसके बाद my first job was with the NetSol group, with the, I would say, the great Ghauris for their contribution to the country. And then I left for UK to do my master's from Cardiff University in the UK. I did it in information systems engineering. फिर 2005 में पाकिस्तान वापसी हुई और फिर जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, I got the opportunity to work with LMKR अंडर बनी शबाना खान मरहूमा. और मैं जहाँ मौका मिलता है मैं ज़रूर जिक्र करता हूँ कि बनी का बहुत रोल है इन शेपिंग माई करियर एंड माई कैरेक्टर. आई थिंक शी वॉज अ ग्रेट लीडर टू वर्क अंडर. From there I joined Nokia Siemens Networks back in 2009. And then 2011 में I landed with IBM as their public sector sales leader. Then Allah Ta'ala gave me the opportunity. I led this national sales as country sales manager for IBM starting to 2016. And then Allah Ta'ala was again very kind, and I was given the responsibilities to lead the organization in Pakistan as their country head and country general manager for IBM Pakistan back in 2021. So till 2025, I worked with them, and about 6-7 months back, I got this great opportunity to come and serve at the PTCL group. So here I am. Before we go into your work at PTCL, engineering क्यों आपने pick की? Was it like sort of a forceful माँ बाप का, आज भी जैसे माँ बाप engineer doctor वाला वो जो vertical है, or was that your own sort of passion? To be honest, जिस ज़माने में मैं कर रहा था mid-90s, prevailing वो था, वो ये था कि if you are good, you'll either become a doctor or an engineer. बट मेरे ख्याल से मेरे वालिद अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, उनका एक बड़ा अच्छा वो था कि वो सिंस वी वर वेरी यंग they would speak to us about the latest trends, what's changing in the world. I remember him telling when I was probably 7, 8, 9 years old that, you know, the silicon chip is going to change the world. वो कहीं जर्मनी विजिट कर रहे थे, वहाँ उनको सिलिकॉन चिप दिखाई गई और बताया गया कि जी ये कंप्यूटर्स किस तरह आ रहे हैं. So he would always narrate that story to me, and he got me admitted into a computer. उस ज़माने में प्रोग्रामिंग जो अकेडमीज़ होती थी, so metric जब मैं कर रहा था उसकी जो छुट्टियाँ थी उसमें उन्होंने मुझे वहाँ दाखिला करा दिया. So of course I developed that interest, and then अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला gave me the opportunity to go and study at GIK at that point in time. So that's how I ended there. और थोड़ा से JK के बारे में बताएं, बिकॉज मैं जिससे भी मिलता हूँ उनके जो एलुमनाइज वन, आई थिंक दे आर वेरी प्राउड एलुमनाइज. और भी सारे बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं बट बहुत ज़्यादा लोग नहीं जिक्र करते हैं. फिर हम लोग जो पूरा इंजीनियरिंग वर्ल्ड का इकोसिस्टम है उसमें भी हर जगह आपको कोई ना कोई बंदा मिलता है. एंड देन ज़ाहिर आप अभी एलुमनाई चैप्टर भी वहाँ देख रहे हैं, तो वहाँ व्हाट डिड यू रियली लर्न? मतलब ठीक है स्किल्स डिग्री वो सारा था, व्हाई द यूनिवर्सिटी is a bit different compared to other universities? Tala, this is a very interesting question. And I tell you, there are reasons why we associate ourselves so much. Because आप देखेंगे usually when you land there, when you reach there, you are about 17 to 19 years of age, right? अब ज़्यादा लाइक थे तो आपने जल्दी क्लासेस कर ली तो आप 17 में पहुँच जाएंगे. यूजली मेजॉरिटी विल ज्वाइन देम एट 18. अच्छा 18 बड़ी
आई वुड से बड़ी एक क्रिटिकल एज ग्रुप है, बिकॉज ये वो टाइम है 18 to 22 व्हेन आई फील दैट यू ट्रांसफॉर्म इनटू अ मैन फ्रॉम अ बॉय. और ये वो टाइम है जब हम 100% फुल टाइम बोर्डिंग में रहते हैं. So I think among the engineering universities in Pakistan, GIK is probably the only place which is 100% boarding. And it is also, अब तो फिर भी motorway से short हो गया, but it was at a distant place, you know. So वहाँ पर you have to build the whole life around you by your own self. So आपने entertainment क्या होनी है आपने decide करना है, पढ़ाई क्या करनी है आपने decide करना है, ज़िंदगी में और क्या कुछ होना है, everything you need to create for yourself. Plus 100% boarding, so you all live together, you know, all your friends, everyone. So I think कि वो जो 4 साल of living at a comparatively remote area, and you're completely on your own, you're away from the family, you develop a new family there, and I think that is what stays with you for the rest of your life. At least that's how I feel. सो अभी भी हालांकि कहने को सिर्फ 4 साल रहे हैं, मुझे तो ग्रेजुएट हुए भी अब 26 साल होने वाले हैं. सो 25 साल हो चुके हैं, आई एम इन द 26th ईयर, बट वो 4 साल का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. व्हाट डिड यू मिस द मोस्ट? यार आई थिंक द फन पार्ट, आई वुड से, मतलब स्टडीज से तो थोड़ा सा किनारा कशी की हुई थी. आई थिंक यू नो विद बीइंग विद योर फ्रेंड्स, दैट इंडिपेंडेंस, दैट फन पार्ट, 24 hours, आई थिंक that's what I miss the most. Plus उस जगह की अपनी एक vibe है, you know, when you are away, and that place has its own vibe, I think, जो you continue to miss. But now when you meet with the new students या ज़ाहिर है job market में भी जब नए employees आते हैं या young engineers, what's the main difference? Like आप लोगों के time से if you compare now, जो स्टूडेंट क्वालिटी निकल रही है या ओवरऑल, बेशक आपकी यूनिवर्सिटी हो या और हो, लाइक हाउ डू यू, लाइक ऑन अ वेरी मैक्रो लेवल, आपको क्या लगता है? अच्छा देखिए, मेरे ख्याल से कमर्शलाइज हुई हैं चीज़ें ज़्यादा. सो अब बहुत सारी डिग्रीज जो हैं वो मुझे लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मार्केट नीड पर हैं, विच इज़ ऑल्सो द राइट थिंग टू डू टू अ सर्टेन एक्सटेंट. बट आई थिंक कि उस वक्त ज़्यादा फोकस वॉज ऑन साइंस एंड द बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंजीनियरिंग. अब जो है इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन व्हाट द मार्केट नीड्स. आप AI की स्पेसिफिक डिग्रीज़ हैं या साइबर सिक्योरिटी की बहुत स्पेसिफिक डिग्रीज़ हैं. सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द डिफरेंस. प्लस बच्चे अभी के भी बहुत स्मार्ट हैं. आई वुड से कि हम लोगों ने कई चीज़ें वहाँ जाके सीखी, बट अब तो जो जनरेशन है, जो चीज़ें हम वहाँ सीखते थे, वो अब मेरे ख्याल से 12-14 साल के बच्चों को भी आती हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यूजिंग टेक्नोलॉजी, अप्लाइंग टेक्नोलॉजी फॉर देयर बेनिफिट. तो आई थिंक ये जनरेशन बड़ी डिफरेंट है, और लाइक एवरी जनरेशन दे हैव देयर स्ट्रेंथ्स एंड दे हैव देयर वीकनेसेस. So that's about it. I think the smarter people do well in life. Hardworking people do well in life. And I wish the newer generation all the best. अब लेकिन आपको क्या लगता है कि जो अब की generation, let's say Gen Z है, what are some of the skills do you feel like they should have rather than ठीक है डिग्री तो आ गई, आप काम भी आके सीख लेते हैं, अब तो ChatGPT से आप वैसे ही पूछ लेते हैं, वो वाली चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं. लाइक इन टर्म्स ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स, लाइक बिकॉज जब आपके पास अब लोग आ रहे हैं तो ज़्यादा कमी आपको कहाँ लग रही है जो यू फील लाइक यार ये कुछ चीज़ें जो इम्प्रूव होने वाली हैं काफ़ी ज़्यादा? अच्छा देखें, अगेन जेन जी की हम बात कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी डायनामिक वर्क फोर्स है. क्योंकि आपने मुझसे स्पेसिफिकली पूछा कि कौन से एरियाज़ हैं फॉर एग्जांपल वेयर दे नीड टू इम्प्रूव. आई थिंक ओनरशिप. अभी मैं एक पैनल पे था तलहा जहाँ जेन जी की बात हुई, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट पर्पस एंड ऑल, एंड आई सेड पर्पस इज़ द नॉर्थ स्टार. इट ड्राइव्स आवर लाइव्स, बोथ पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइव्स. लेकिन मुझे ये लगता है कि जो अभी की हमारी जनरेशन है, स्पेशली जेन जी की जब हम बात करें, तो दे नीड देयर ओन टर्म्स. Whereas I feel that our next generation must be ready to work and perform under tough conditions, under conditions where their requirements may not be fulfilled, their expectations may not be fulfilled. You need a more stronger, set of people.
This reminds me of that mashhoor, circle of life, which says that tough conditions create strong men. Strong men create good conditions. Good conditions create weak men, and weak men create and women create bad conditions, right? So it's a circle of life. नहीं, लेकिन वो फिर So- बच्चा ये भी तो कहेगा अगर मेरे पास अच्छी कंडीशन है तो ये मेरा तो कसूर नहीं है, तो नहीं, देन अच्छी कंडीशंस को अपने लिए इस्तेमाल करें, अपनी वीकनेस ना बनने दें. सो आपके पास गाड़ी होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैदल चलना और भागना ना आता हो. सो आप बिल्कुल इस्तेमाल करें जब ज़रूरत है. सॉफ्ट ना हो बहुत ज़्यादा. तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं. एंड द काइंड ऑफ लीडरशिप दैट वी नीड इन कमिंग डेज इज द फ्यूचर लीडर्स, बोथ बच्चे और बच्चियाँ, men, women, they all have to be extremely tough to lead our country to, inshallah, to new heights and to growth areas, right? So अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी टर्म्स पे सिर्फ काम करेंगे या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, तो you won't be able to provide the kind of leadership the country needs. और उसके साथ साथ अभी कॉर्पोरेट कल्चर भी ज़रा इवॉल्व हो रहा है बहुत ज़्यादा. ज़रा वर्क फोर्स नहीं है, नई टेक्नोलॉजी, नए स्टाइल ऑफ वर्किंग, रिमोट वर्क एंड लाइक अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. अभी ज़रा जेन ज़ी या जो नई, जैसे आपने कहा, लीडरशिप तैयार हमने करनी है या हो रही है, अब इन लोगों के तो पैटर्न्स आर वेरी डिफरेंट. सो एज एन एग्जांपल, एवरेज मेरे ख्याल से इवन इंटरनेशनली, आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट, 2-2.5 साल से ज़्यादा कोई भी बच्चा कहीं काम नहीं कर रहा. अब आपके टाइम में या इवन हमारे टाइम पे, मतलब हमारे टाइम में प्रॉब्ली आई थिंक 5-8 साल तो मिनिमम यू फील लाइक यार मुझे काम करना, आई वांट टू रियली लर्न. एंड आपके टाइम में प्रॉब्ली 8-10 साल, 11 साल भी लोग करते थे. बट अब अगर एक बंदा या बंदी काम ही 2-2.5 साल, 1.5 साल, or like I don't want like big responsibility, because I talk to people in my team as well कि यार do you want this leadership? नहीं, आप हमें कुछ देंगे, हम वो आपको कर देंगे, but ये लोग मैंने नहीं मैनेज करने, और I don't want like a bigger role. You can give me whatever you want. अब लेकिन जब ये चीज़ हो रही है, तो then how are we going to create leaders who will sort of going to lead like big teams? So, ये बिल्कुल तला, आई वुड से आपका बहुत वैलिड कंसर्न है, और ये एक प्रॉब्लम है जो अक्रॉस द इंडस्ट्रीज एंड अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स एंड फंक्शंस आई थिंक एवरीवन इज फेसिंग. अच्छा, आई थिंक कि जिस समय पहले कह रहा था कि कुछ चीज़ों में लोग, ये एक्सपेक्टेशन है इस नई जनरेशन की, दे वांट देयर ओन टाइम, दे डोंट वांट टू गो, नॉट ऑल ऑफ देम, बट of course most of them, as we experience or we are experiencing, they don't want to go that extra mile. But I think कि ये start of the career में है, इसमें से वो workforce और वो बच्चे निकलेंगे, बच्चे और बच्चियाँ, who would understand कि to perform well, to be able to create an impact in the world, if you want to really change things around you, you have to take the difficult paths. You have to go that extra mile. You have to bear that pain, because to grow on merit is not a very easy thing, Tala. We have to compromise. There's always a cost and a price to everything. To growth, for growth as well, you have to pay a price. कभी वो आपका family time होता है, कभी वो आपकी कोई और priorities होती हैं, और time is life, time गुजर रहा होता है, कई opportunities you let go, कई ऐसी चीज़ें जो आपके प्लान का पार्ट होती हैं, यू लेट गो फॉर बिगर पर्पस, फॉर बिगर इम्पैक्ट. तो आई थिंक इसमें से भी निकल आएगा. ये जनरेशन अभी जेन जी इज 2000, तो ये बच्चे बिल्कुल 3-4 साल हुए दे आर इन द मार्केट. आई थिंक मोस्ट ऑफ देम विल रियलाइज, एंड स्पेशली अगर नॉट मोस्ट, तो एटलीस्ट दोज हु मैटर वुड रियलाइज दैट लाइफ इज डिफरेंट. लाइफ इज नॉट run by your own expectations and by your own choices, right? So sometimes you have to go and do that difficult thing that otherwise you would not want to do or you don't like. But if that's a requirement, you go ahead and you do those things. So I think it's a matter of time. We will, inshallah, I'm very hopeful, we'll see. They are a very smart generation. As we call them, the cloud native, the internet native, the AI native generation. They're very smart. And ये जो soft part है, ये inshallah realization इसकी आएगी इस generation में भी. And course ठीक हो जाएगा. थोड़ा सा मुझे बताएं कि जो your time at IBM, अब IBM
मतलब ज़ाहिर है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काफ़ी अरसा से ये लोग हैं. व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर टाइम एट IBM? और वहाँ भी ज़ाहिर है आपने काफ़ी ट्रांजिशंस भी देखी. एंड नाउ मूविंग टू द PTCL व्हिच इज़ very different organization. It's ज़ाहिर है semi government. अब ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हमने पिछले कुछ अर्से में देखी. सो थोड़ा सा IBM का अगर आप टाइम अपना बता सकें, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दोज सॉर्ट ऑफ इयर्स? अच्छा, आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक कहा. इट्स एन इंस्टीट्यूट एक्चुअली. IBM has been there for over 115 years now, right? So it's a brilliant organization. और IBM में मेरे ख्याल से अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो ग्लोबल एक्सेलेंस IBM से हमने सीखी. मैच्योरिटी ऑफ प्रोसेसेस, मैच्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स. एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, इंटेग्रिटी, वेरी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेग्रिटी, very high in standards of compliance, people development. I mean, these are some of my experiences that I'm so thankful to Allah. अल्लाह ताला ने मौका दिया एक ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए काम करने का. और मैंने over 14 years I spent with them in different capacities, as I explained. And there was so much that I learned. So yeah, these are the main things I think. But then, like, what was the reason of moving to PTCL group? अच्छा, इसमें तला मल्टीपल सर्टन रीजंस ऑफ माय पर्सनल वो कि मैं आई वांट टू स्टे इन पाकिस्तान, आई वांट टू वर्क हियर. अब मैंने 15 साल काम कर लिया था और अल्लाह का शुक्र है एट द हाईएस्ट लेवल आई वाज ऑपरेटिंग. आई थिंक कि जिस ग्लोबल एक्सेलेंस IBM ने सिखाया उसको अप्लाई करने के लिए जो लोकल कैनवस PTCL ग्रुप प्रोवाइड करता है, मैंने इस पर बड़ा सोचा एक्चुअली बिफोर मेकिंग दिस मूव. आई थिंक कि वो अपॉर्चुनिटी एक, एंड आई स्टिल बिलीव दिस माई 7th-8th month रादर विद द ऑर्गेनाइजेशन. तो आई थिंक कि जो अपॉर्चुनिटी साइज है पाकिस्तान में इम्पैक्ट क्रिएट करने का, वो PTCL से बेहतर शायद कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. You talk of connectivity. Actually, this organization since 1947 actually covers the breadth and depth of the country. It touches almost every life in our country. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो साथ साथ इवॉल्व हो रहा है. So I thought कि जितना कुछ IBM से सीखा या उससे पहले सीखा उसको अप्लाई करने के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है. एंड द साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ ह्यूज. ऑफ कोर्स लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन वी ऑल्सो हैव सर्टन चैलेंजेस, वी ऑल्सो हैव to change a lot of things, and under the leadership of Hatim Mamatraf we are already on that journey. So I'm also just part of the team, and hopefully will play my role in bringing that change and taking full advantage of this potential that this group has. And what was your perception before joining PTCL? Because from the outside तो एक है ना कि जी सरकारी सी ऑर्गेनाइजेशन है. अभी भी जब आपकी टीम से पहली कॉन्वर्सेशंस मैंने की तो इट्स फैसिनेटिंग लाइक टू मीट पीपल, लाइक देयर आर लॉट ऑफ यंग पीपल वर्किंग देयर. उस दिन भी एक आए हुए थे साहब, तो वो ही वाज मेंशनिंग के उधर ही जो है वो पुराने ब्यूरोक्रेट टाइप का बंदा है, वहाँ जनजी भी बैठी हुई है. तो इट्स अ वेरी लाइक interesting sort of it's a very dynamic, yeah, I would say, environment. Yes. So like, but what was your perception? और फिर जब आपने join किया तो like आपको क्या नज़र आया? अच्छा, मैं पता है तला पिछले 7-8 महीनों में almost आज तक for till this moment people ask me this question, right? अच्छा, मैं PTCL ग्रुप के साथ एज अ टेक्नोलॉजी पार्टनर बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ. एंड I have and had a very decent idea of the strengths and weaknesses. But after I joined the group, Tala, I got exposed to so many aspects of this organization that I wasn't aware of. And अभी कुछ अर्से पहले मैंने अपने बल्कि LinkedIn पे लिखा भी कि every passing day, you know, I enjoy the decision, I cherish the decision that I took to join the PTCL group. For example, इनकी legacy और history बड़ी ज़बरदस्त है. Of course, उसके साथ कुछ legacy mindset भी आता है, but that's true for every large organization who've been here for decades. जब मैं IBM में था तो IBM की भी बहुत बड़ी legacy है.
वो ग्लोबल लेवल पे है, PTCL इज मोर एट अ नेशनल लेवल, बट लेगेसी के साथ कुछ लेगेसी माइंडसेट्स आते हैं, बट दैट्स ऑल राइट, इट्स पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हु इज बीन वर्किंग फॉर 75 years will have certain challenges and it's okay. We live with that. उसके फिर बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर अवेयर, PTCL का जो सेटेलाइट विंग है हमारा, उसने 1972 में सेटेलाइट कम्युनिकेशन स्टार्ट की थी. और आपको पता है जो पहली, मेरा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो पहली कम्युनिकेशन सेटेलाइट है वो गालबन 1965 में लॉन्च हुई थी. 1972 में PTCL, और यहाँ इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब मरी एक्सप्रेसवे से पहले हमारा एक अर्थ स्टेशन है, वो इट वाज एक्टिव एंड इट वाज वर्किंग. पहली केबल कनेक्टिविटी के लिए कॉपर केबल मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1976 में कराची टू दुबई ले डाउन कर दी थी PTCL ने. तो बड़ी हिस्ट्री है. फाइबर फुटप्रिंट आज आप इनका देखें, सबमरीन केबल्स में इनकी इन्वेस्टमेंट देखें. पूरा पाकिस्तान बेसिकली इधर कॉपर या फाइबर के थ्रू दे हैव रीच्ड, दे आर कनेक्टिंग द होल कंट्री. ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ. ये यूजली व्हेन पीपल थिंक ऑफ PTCL तो उनके दिमाग में ये कनेक्टिविटी वाली चीज़ें आती हैं, या और यू थिंक ऑफ यूफोन तो यू थिंक ऑफ मोबिलिटी. वी हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ Tier 3 certified commercial data centers. Hundreds of customers are taking advantage of those data centers across Pakistan. We have one of the most efficient cloud running from PTCL. We have a very strong cybersecurity offering for our corporate service customers. We are working into IoT space in a big way. PTCL Group is creating multiple different digital platforms to serve our customers. So there is so much more that people are not aware of, right? So when I put the whole thing together, the legacy, the modernization, the platforms, the technology, the investments, I mean, it becomes an extremely interesting place to work at. And Alhamdulillah, I'm very happy being here. And तुमने मेरे ख्याल से आपने डायरेक्टली मुझसे नहीं पूछा, बट लोग पूछते हैं कि आप डिसीजन ठीक था या गलत. आई एम वेरी हैप्पी that I am with PTCL Group and I'm thoroughly enjoying it. ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर की जो एवोल्यूशन है इन पाकिस्तान, उसको आप कैसे देखते हैं? ज़रा PTCL वाज ऑन द फोर फ्रंट, बहुत ज़्यादा काम हुआ, फिर बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स भी आए, और फिर इन द इकोसिस्टम एज वेल वी हैव सीन बहुत एवोल्यूशन आ गई है. अब ज़ाहिर है जहाँ डाटा चलता था तो अब व्हाट्सएप 99% मेरे ख्याल से लोग व्हाट्सएप पे कॉल्स कर रहे हैं. ट्रेडिशनल जो कंपनीज़ या कॉर्पोरेट्स थे वो हमने देखा कि अपने मेन बिजनेस से निकल के नए बिजनेस वर्टिकल्स में जाना शुरू हो गए. सो ओवरऑल जो टेलीकॉम को ऑन अ वेरी मैक्रो लेवल व्हेन यू सी, तो वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? तलहा, इसमें मैं आपको बताऊं, जो एक टिपिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेलीकॉम सेक्टर होती है लोगों की, इनिशियली इट वाज अबाउट वॉइस, देन इट वाज अबाउट डेटा. So minutes and bytes, if you want to put it. But जो future में, or even right now, I think all the telcos in Pakistan, and your question is specific to Pakistan, so all the telcos are transforming. I think it's a matter of time. The telcos will be the digital engine of the country. Because there's certain advantages that the telcos have. So connectivity is primarily being managed. Inshallah, ये 5G आता है, बाकी चीज़ें आती हैं, तो आपका data connectivity will primarily be led by these telecom operators, right? And then जो इनके अपने अंदर transformation है, कुछ technology की तरफ transform कर रहे हैं. Some want to become the technology provider. You will also see one of the telcos pursuing to become a service. So the transformation has already started. It's a matter of time. मुझे तो लगता है कि 4 से 5 साल में probably connectivity के revenue से ज़्यादा digital services का revenue होगा at these telcos. So that transformation is going on. Consolidation हो रही है, of PTCL Telenor merger as well. So consolidate होगी industry. नई services हर रोज़ आ रही हैं. टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं. वी आर प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स टू आवर कस्टमर्स.
to help them focus more on their business and let us take care of your technological needs. So that's our kind of slogan, right? So, and as I was telling you, cloud, cybersecurity, data centers, IoT, connectivity, satellite communication, international connectivity, all of these things are happening as we speak. So it's a matter of time. I think telcos मेरा अपना ख्याल ये है कि will become more of technology companies, and they will be in that space as a major stakeholder and service provider. So that's how I think things will go. अगर ये कॉन्वर्सेशन को आम लेट्स से बंदा सुन रहा है, देख रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा नई चीज़ें पता है, उसको एक ओवरव्यू मिल रहा है कि वेयर डू वी स्टैंड इन पाकिस्तान टेलीकॉम सेक्टर एंड देन PTCL, बट उसका बड़ा सादा सा सवाल होगा कि यार मुझे तो इंटरनेट भी मेरी स्पीड सही नहीं आती। हमें अक्सर पता चलता है कि जी शार्क काट गई है, और ज़ाहिर अभी मैं IT मिनिस्टर के साथ था, शज़ा के साथ, तो उनसे भी मैंने पूछा, ऑब्वियसली शी वाज लाइक ऐसा कुछ नहीं होता, बट आई वाज लाइक बट TV के ऊपर इट्स एक्चुअली अ ब्रेकिंग न्यूज़, इट्स नॉट कि मैं कोई अपने पास से या मैं आपको मीम दिखा रहा हूँ, लाइक दिस इज़ द एक्चुअली अ परसेप्शन, या कहीं पीछे से वो उसकी उसको कम कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। तो अगर हमने इतनी ज़्यादा चीज़ों में जाना है, पूरे इकोसिस्टम को बिल्ड करना है, AI का ज़ाहिर है अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें आनी हैं, तो बट अगर इंटरनेट की स्पीड ही हमारी नहीं है, फ्रीलांसर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, तो बाकी जो चीज़ें आप इतनी ज़्यादा बता रहे हैं, उसका आम बंदे को क्या उसका मतलब फ़ायदा है? अच्छा देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, मिनिस्टर साहिबा ने बिल्कुल ठीक बताया आपको, शार्क नहीं आती है ना, पूरी समंदर में, पूरी दुनिया में ना हमारी केबल देख के काटती है, शायद कभी कोई इंसिडेंट हुआ हो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बट यू आर राइट, इंटरनेट स्पीड रिमेन्स अ चैलेंज, और वो दोनों साइड पे है। वो फिक्स्ड लाइन जो हमारे घर पे कनेक्टिविटीज़ वैसे फिक्स लाइन के थ्रू फाइबर की या बाकी आती हैं, या मोबाइल पे। अच्छा, मोबाइल के ऊपर भी वी हैव टू वर्क अलॉट। हमारी कुछ स्पेक्ट्रम की लिमिटेशंस हैं, जो ओवरऑल स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, इट्स लाइक अ हाईवे, राइट, इसके ऊपर ट्रैफिक चलती है, तो होपफुली इन नियर फ्यूचर आई बिलीव रेगुलेटर्स आर आल्सो इवैल्यूएटिंग इट, एंड वहाँ पर कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। ऑन द अदर साइड, विच इज़ आवर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, आम अल्फाज में कह लें कि जो इंटरनेट पाकिस्तान पहुंचता है, उसके ऊपर भी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। PTCL is the major shareholder in carrying the international traffic. If I'm not wrong, about 65% of the Pakistani international traffic is being carried by our network, our submarine network. So उसमें भी बिल्कुल expansions होंगी, and we'll continue to improve on that. So hopefully future is bright. Some of these issues will be addressed. And by the way, abhi bhi fixed line per Talat, things are not as bad, right? So if you need a fixed service level, तो वो बिल्कुल available है, and पाकिस्तान में तो बहुत ही अच्छी cost पे वो चीज़ें available हैं from a consumer point of view. From a business point of view, it hurts at times, or from a consumer point of view, I think बहुत अच्छे rates पे चीज़ें available हैं. But of course, I understand that we need to improve, and we'll inshallah continue to improve on that. As we speak, we have also made certain investments to further broaden and expand our international connectivities through submarine cables. So hopefully things will improve. And how do you see the role of AI? Because हमने देखा कि जो एक evolution 10 साल 15 साल का जो process था, वो बहुत तेज़ी के साथ 6 महीने 8 महीने साल में वो चीज़ें आ रही हैं। आपने भी जैसे जिक्र किया कि टेलीकॉम का पूरा बिजनेस मॉडल शायद सर्विसेज वाली साइड पे ज़्यादा हो जाए, और फिर AI भी इतना तेज़ी के साथ चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, लाइक एवरी फ्यू लिटरली मंथ्स नाउ। सो इस पूरी चीज़ का इम्पैक्ट टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा देखें, एज ए सेड, टेलीकॉम सेक्टर तला मुझे लगता है कि फ्यूचर में आपका जो डिजिटल नेशनल इंजन है, उसका शायद सबसे क्रिटिकल पार्ट होगा, ठीक है। And of course, AI, and I call AI as a capability. AI for me is a capability which needs to be applied to different use cases and different technologies, right? So उस capability को हमें भी already हम इस पे काम कर रहे हैं. For example, अगर मैं आपको PTCL group का internal हमारे usage का बताऊं, तो we have already started to use it for better customer engagements, for understanding our customers better. So उस level पे already हमने इस्तेमाल शुरू कर दिया है.
And moving on, I think it's a matter of time before your networks will also be autonomous, powered by AI. क्योंकि जो capability है of learning and taking certain decisions on its own is amazing, right? So it's a matter of time. जब आप पाकिस्तान में देखेंगे कि self healing and self running networks will come into play, which will be powered by this artificial intelligence capabilities. इसके अलावा there are various other reasons for areas. For example, हमारी processes automation जो है उसमें I see a very critical role of intelligent automation. So automation plus your AI capabilities. उसके बाद आपका हम अब sovereign cloud की अपने बात कर रहे हैं. उधर AI का जो infrastructure है उसकी availability और उसके ऊपर उसका जो पूरा stack है to run different models, large models, small models, micro models, वो आप देखेंगे कि telecom operators like PTCL very soon will be offering it to our customers to use. So both internal use as well as enabling our customers to use the AI capability will become very common. AI infrastructure ho ya AI ka software stack ho, inshallah you will see this to be offered by telcos very soon, inshallah. और थोड़ा सा अगर आप अपने रोल के बारे में बताएं, what is your role right now at PTCL Group and what do you personally want to achieve in the let's say next 12 to 24 months? Okay, so see, I am the Group Chief Business Solutions Officer, Tala. So all corporate business, the B2B part is being looked after by my department. और जो हमारे अब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें ऑफ कोर्स मोबिलिटी हो, कनेक्टिविटी हो, डेटा सेंटर्स हो, क्लाउड हो, सिक्योरिटी, IoT, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ व्हाटएवर वी वांट टू ऑफर टू आवर कॉर्पोरेट कस्टमर्स और टू आवर गवर्नमेंट कस्टमर्स कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. अच्छा, अब इसके अंदर 12 to 18 मंथ्स में 3-pronged स्ट्रैटेजी है दैट वी आर ट्राइंग टू रन. एक आपने स्टार्ट में बात की थी कि जी लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पुराना माइंडसेट भी है. हम उसकी मॉडर्नाइजेशन पे पीपल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट विच इज़ ऑल अबाउट पीपल, राइट. जो दूसरा पार्ट जिस पे हमने काफ़ी फोकस रखा है, इट इज़ अलाइनिंग आवर प्रोसेसेस विद हाउ द ग्लोबल वर्ल्ड वर्क्स. सो हम अपने बहुत सारे, बिकॉज देखें अगर आप पास देखेंगे PTCL का, तो हम प्राइमरली एक रिटेल माइंडसेट से हम एक कॉर्पोरेट दुनिया में आए तकरीबन कुछ सालों पहले. तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट वी नीड टू ब्रिंग इनटू द माइंडसेट एंड द प्रोसेसेस टू बी मोर अलाइंड विद हाउ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्क्स. ऑलरेडी इस पर बहुत काम हुआ है, बट मुझे लगता है कि हम अगले 12 महीनों में मजीद काम करेंगे एंड वील अलाइन इट एग्जैक्टली विद हाउ द इंटरनेशनल कंपनीज वर्क. जिसकी मैं बात कर रहा था कि IBM में हमने ग्लोबल एक्सेलेंस का बड़ा सीखा, उसमें हमने प्रोसेसेस के बारे में बड़ा कुछ सीखा. तो उसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे यहाँ पर एज अ टीम हम इसको अप्लाई करें. और जो तीसरी चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट्स कॉन्टीन्यूअस इनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, राइट. सो एज यू मैंशनड, AI आ रहा है, ऑटोमेशन आ रही है, क्लाउड के अंदर वेरिएंट्स आ रहे हैं, एज कंप्यूटिंग इज नीड ऑफ द टाइम, AI is need of the time. So हम इन areas पे focus कर रहे हैं. We are modernizing our products to serve our customers better. So at the heart of my department, at the heart of PTCL is customers, right? So we want to give the best experience and the best platforms to our customers for them to focus more on their businesses and do better than how they are doing today, right? So that's our focus and that applies on ourselves as well. सो जो प्रोडक्ट्स की मॉडर्नाइजेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है अभी हमारा. एंड व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो आपको आ रहे हैं? अच्छा देखें, इफ़ यू लुक एट द टेक्नोलॉजी सेक्टर, इट्स प्राइमरली पीपल ड्रिवन, राइट. सर्विसेज सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा पीपल ड्रिवन है. एक का तो आपने पहले जिक्र कर दिया था, रिटेंशन ऑफ रिसोर्सेज एट टाइम्स बिकम चैलेंजिंग because of various reasons, you know, कि आजकल the whole country is going through a tough time in terms of retaining the top talent in the country. So that वो एक challenge है, but
Again, the flip side is that we have a large population and huge workforce still available in the country. They're hardworking people who are willing to, create an impact. तो हम उसको उस तरफ से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, इसके बाद मेरे ख्याल से एक और चैलेंज जो है तलहा, वो ये है कि जो प्रोडक्ट्स की हमारी मॉडर्नाइजेशन है, उसके लिए बल्कि मैं आपको इस तरह कहूँगा कि हर अपॉर्चुनिटी का एक विंडो होता है, आपको उसके अंदर चीज़ें करनी होती हैं. तो स्पीड जो है, जिस स्पीड से हमें अपने प्रोडक्ट्स लाने हैं, मेरे ख्याल से उसको हमें मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट साइड एज वेल. बाकी आई थिंक बिजनेस एज यूजुअल है. Challenges are good, and the fun part in the job is to come to office every day and fix those challenges. So Allah ka shukr hai. Otherwise, I think we have very good people. As PDCL, we have a legacy. We have very strong DNA. Our digital infrastructure is among the best. In certain cases, the best in the country. So I think we'll just put our words into actions, and inshallah, you'll see that we'll continue to, serve our customers in newer ways and better ways, inshallah. थोड़ा सा अगर आप पार्टनरशिप्स के बारे में बताएं, what kind of partnerships are you guys looking into right now? ज़ाहिर है legacy organization, there are a lot of already partnerships and collaborations bringing like companies उस level के ऊपर, but उसके अलावा किस किस्म की collaborations you guys are doing right now? सो तला, पहले तो मैं आपकी एक चीज़ जो है ना, वो जब आप कहते हैं लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन, तो फील ऐसा आता है जिस तरह के बड़े पुराने माइंडसेट के. तो लेट मी क्लैरिफाई दैट पीस, राइट. सो आई एम कमिंग फ्रॉम अ हार्डकोर ब्लू चिप American multinational, and let me tell you this with confidence कि PDCL is also a very forward looking, and it's transforming into a very modern organization. Yes, we have legacy, and many organizations who have been working for decades have certain legacies, which is also good, right? So we are a mix of both, and that brings vibrance and excitement in the working environment that we have. Now, going to your partnership wala question. So partnerships, we want to be primarily a platform and a services company, right? Connectivities, बाकी चीजें हम दे रहे हैं. जो हार्डकोर टेक्नोलॉजी हम लेते हैं, वो हम अपने पार्टनर्स के थ्रू ही लेते हैं. आई डोंट वांट टू नेम एनी, बिकॉज बट देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पार्टनर्स दैट वी हैव, राइट. सो हमारा पूरा का पूरा जो टेक्नोलॉजी स्टैक है, इट इज कमिंग फ्रॉम IBMs and Oracles and Red Hats of the world, right? And there's a long list, and they're all very, very critical partners for us. Fortinet hai, there's a long list, right? And we'll continue to strengthen our partner ecosystem. To be honest, as I was telling you, that we are transforming and aligning ourselves with how the technology large multinationals work. So we have formed a new team of partnerships and alliances and collaborations. So that goes on, and we will continue to onboard new partners. And we will also become a partner to so many other organizations, right? And this will continue. This will go on. दूसरी एक और चीज़ कि आज के दौर में स्पेशली अ यंग पर्सन, आप एटलीस्ट मैं तो जिससे भी बात करता हूँ, या तो वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, या वो अपना बिजनेस करना चाहता है, या माँ बाप ज़रा सख्त हैं तो इंजीनियर डॉक्टर वाला वर्टिकल है. So why should people, yeah, generally like new students select telecom? Like what are some of the opportunities in a long run career के perspective से आपको लगता है यहाँ है? अच्छा, देखें, इसको मैं डिवाइड करूँगा into certain pieces, and since I'm coming from an engineering background, so I'll start off with technology. So for the younger technology grads, you would not find a place, and I'll be specific to PDCL. I'm not representing any other company. In general, the sector, and then the PDCL group, PDCL UFON group, where you get an opportunity to work on submarine cables, on satellite connectivity, on fibers, optics connectivity, on data centers,
on cloud, on software as a service, on around AI, around IoTs, and the list goes on, right? So this is one platform where you're getting, as a young grad of technology, all of these different areas where you can move around and learn and perform, right? So मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है टेक्नोलॉजी का, और कैनवस बहुत बड़ा है. यू कम इन एंड यू कैन डू सो मच मोर. अच्छा, उधर से मैं मूव करूंगा थोड़ा सा ऑन द मार्केटिंग साइड. So the kind of subscriber base the telecom sector has, the size of opportunity that you have if you are interested in marketing, if you are interested in consumer behavior and data analytics, I mean, what better platform will you get in Pakistan, right? Usi tarah, there are many other, the kind of, financial revenue size that we have, if you're part of finance, accounting, treasury, का आपका experience है, this is a different scale, the telecom sector, right? Similarly, you go into regulatory compliances and all. I mean, we are one of the most regulated sector, and the kind of experience you can get if you're coming from that background is awesome. Similarly, legal compliance, audit. I mean, just look at the scale of this sector, right? And that decides, and that gives you so many opportunities. And then I know so many people, Talha, jo PTCL group ka part hai, who have served in various different departments, right? So if you are that person who wants to have broader experience, I think this is the place to be. The canvas is really big. The canvas is huge. The scale is big, yaar. मतलब एक बड़ा scale है. Multiple different defined functions exist करते हैं, और वो भी एक different scale के ऊपर काम कर रहे हैं. So I think, especially talking of the PTCL group, when we talk of group, of course, we also cover UBank. So even in the banking sector, if you have if you want to pursue your career, so we have opportunities. So essentially one stop shop. मैं तो जी यही कहूँ, मैंने खुद अभी ज्वाइन किया है 7 महीने पहले. So of course I have thought over all of these things, and मुझे लगा कि ये एक बहुत ही अच्छी opportunity. और again, as I said before, the size of the opportunity is huge. If you want to create an impact in Pakistan, I think there isn't a better platform than PTCL Group. Lastly, young लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी, लाइक जो अभी लेट्स से पढ़ाई या तो कर रहे हैं या अभी पढ़ाई करके जॉब मार्केट में आ रहे हैं इन एनी फील्ड? मैं आपको बताऊं 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं. आई मीन द लिस्ट इज़ लॉन्ग ऑफ द पर्सनालिटी ट्रेट्स दैट यू नीड. पर्सनली मुझे तला 2-3 चीज़ों ने बहुत हेल्प की. उनमें जो पहली चीज़ है वो है कांस्टेंट क्यूरोसिटी. हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना है. द लर्निंग हैज़ टू गो ऑन. लर्निंग यूनिवर्सिटी के बाद या किसी सर्टिफिकेशन के बाद बंद नहीं होनी चाहिए. द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एवरी डे. You need to continuously and continue to learn new things, right? दूसरी चीज़ is ownership. तला ओनरशिप मैं चाहता हूँ हमारे लोग, हमारे स्पेशली जो यंग बच्चे अब आ रहे हैं, ओनरशिप पूरी लें. इट्स माई जॉब सिंड्रोम या वो जो माइंड सेट है उससे निकल आए कि जी मैंने अपना काम कर दिया है. इफ़ यू आर पार्ट ऑफ समथिंग, लुक एट इट फ्रॉम अ होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू. आप जिस चीज़ का भी पार्ट हैं, ओवरऑल वो क्या कर रहा है, ओवरऑल उस चीज़ का पर्पस क्या है, ओवरऑल उस चीज़ का इम्पैक्ट क्या है, एंड ओन दैट, बी पार्ट ऑफ दैट. सो ओनरशिप कंप्लीट लें. एक और चीज़, अगर इफ आई हैव टू पिक अ थर्ड ट्रेट, इट वुड बी करेज. यू डोंट हैव टू बी स्टूपिड, बट यू नीड टू टेक सर्टेन रिस्क्स इन योर करियर, इन योर वर्क, इन एवरीथिंग दैट यू डू. नई चीज़ें हमें ट्राई करनी है, नए वेज ऑफ वर्किंग हमने एक्सप्लोर करने हैं, हमें कहीं पे शायद इनोवेट करने हो, बट दैट जर्नी, दैट माइंडसेट शुड ऑलवेज बी द प्रीवेलेंट साइड ऑफ योर strategy, right? So I think these 3 things to start with. The list is very long. I can speak for hours on the personality traits, but I would pick these 3 for the younger lot. Asif bhai, thank you so much for taking the time. It's lovely talking to you. Pleasure was all mine. Thank you very much.